Student, today I am going to start experiment number 13. Experiment number 13 is to determine the Joule constant by calorimeter. Determine Joule constant by calorimeter. Already you have to know Joule constant. Joule is the name of scientist. And here we have to determine the value of J. J be the Joule constant or mechanical equivalent. In this experiment, we have to use apparatus. Voltmeter, ammeter, plug key, this is also known as tap key, rheostat, DC power supply, also known as battery, Joule calorimeter, stirrer, wooden box, and thermometer. This apparatus, this instrument, this resource we have to use in this experiment. The name of this experiment or title of this experiment or aim of this experiment, determine Joule constant by calorimeter. Now, student, listen. This is the setup of Joule constant. This is the setup of Joule constant. First, you will see this is the circuit diagram of Joule constant. Circuit diagram. This is the circuit diagram of Joule constant. Here, when we have to connect the circuit by using this circuit diagram, in this circuit diagram we have to use, this is whole assembly is Joule constant assembly. Student, first you will see this is A for ampere. Then this is voltmeter. Voltmeter denoted by V. This is the symbol for battery or power supply. Here is short length and long length. Long length shows positive terminal of the battery or power supply, and this is negative terminal of the power supply. This is the short length, keeping your mind. And this is the symbol for tap key or plug key. Then this is the rheostat. Rheostat denoted by RH. And this is the whole assembly of Joule constant. In this Joule constant, here is calorimeter. Calorimeter as like a simple calorimeter, that is pot. So this pot is this is also known as calorimeter, and this is the copper calorimeter. Keeping your mind, student, this is the copper calorimeter as like a beaker, suppose, but this is the copper beaker. And in this experiment, we can say that this is the calorimeter. And this calorimeter, this is the Joule assembly. We have to keep this calorimeter in the box. This is the wooden box, keeping your mind. This is the wooden box, and in the wooden box we have to keep calorimeter. And this is the calorimeter, keeping your mind. This is the thermometer. This is the thermometer. And here is stirrer. Student, listen here. This is the stirrer. And this stirrer, we have to stir it in this way in the water, because when we have to start the current in the circuit to heat the water from this calorimeter, keeping your mind. So this is the calorimeter, and we have to keep the water in the calorimeter, and this calorimeter kept in the box. So student, listen here. This is the circuit diagram. This is the calorimeter, and in the calorimeter this is the water, and in water we kept the stirrer. For the main function of the stirrer is to stirring the water. This is the coil, heater coil. Already you have to know, you have to use the heater elements in your home. So at that time to heat the water with the help of coil. So this is the heater coil, and this is the thermometer. This thermometer we have to use to measure the temperature of the water in the calorimeter. So student, circuit diagram is very simple. Listen here. This is the assembly. Wooden box. In the wooden box
calorimeter, and on the calorimeter we have to take some pot, or this is the calorimeter, and calorimeter out over of the calorimeter, this is the stirrer, this thermometer, and the use of thermometer to measure the temperature of the water. And this is the two terminal of the calorimeter. This two terminal as like a heat element, keeping your mind, or this is the coil. So this coil consists of two terminal. So first terminal connected here, listen here, circuit diagram. This is the first terminal of the from the calorimeter connected to the voltmeter. Suppose this is the first terminal and this is the second terminal. So first terminal connected to the negative terminal of the voltmeter, and this second terminal voltmeter, this is the second terminal. This is the positive and negative, already you have to know. Positive is yellow color indicates and negative is black color indicates. So in the calorimeter, already you have to know this is the two terminal. So first terminal of the calorimeter connected to the voltmeter of the negative terminal. ये कैलोरीमीटर का पहला टर्मिनल जो है वोल्टमीटर के नेगेटिव को कनेक्ट किया गया है. देन वही पहला टर्मिनल जो है कैलोरीमीटर का कनेक्टेड टू द negative terminal of the battery. Listen here, this is the negative terminal of the battery. This is the battery, and this first terminal connected to the battery as well as negative terminal of the voltmeter. Listen here, this is the negative terminal of the voltmeter. So first terminal of the calorimeter connected in both sides, negative terminal of the battery and negative terminal of the voltmeter. Then second terminal of the calorimeter, this is the second terminal. This second terminal is connected to the positive terminal of the voltmeter, and those terminal also connected to the variable of the rheostat, ground. Listen here, this is the ground and this is the ground of the rheostat. So second terminal of the calorimeter connected to the positive terminal of the voltmeter, and those terminal also connected to the ground terminal of the rheostat. Then the rheostat, variable of the rheostat connected to the negative terminal of the ampere. This is the A for ampere, listen, and this is the positive terminal and this is the negative terminal. So variable of the rheostat connected to the negative terminal of the ampere, or I am sorry here, this is the ammeter, and unit of ammeter is ampere. So A for ammeter, and positive terminal of the ammeter connected to the tap key. Listen here student, this is the tap key, this is the tap key, this is the tap key, and this is the first terminal, second terminal we have to use. So positive terminal of the ammeter connected to the first terminal of the tap key, and second terminal of the tap key connected to the positive terminal of the battery or power supply. Listen here, this is the positive terminal. So tap key, second terminal of the tap key connected to the positive terminal of the battery, and in this way we have to connect this circuit by using the circuit diagram. So this is the circuit diagram. So this is A for ammeter, RH for rheostat, key, tap key. This is the power supply, and this is the voltmeter, and this voltmeter के दो टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल कैलोरीमीटर को कनेक्ट किया है और वही रियोस्टेट में गया है. नेगेटिव टर्मिनल जो है वोल्टमीटर का, वो कैलोरीमीटर के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया है और वही पावर सप्लाई में कनेक्ट किया है, और पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल टैप की को कनेक्ट किया है. टैप की का दूसरा टर्मिनल जो है एमीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, एंड एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो है रियोस्टेट के वेरिएबल को कनेक्ट किया है. तो दिस सर्किट डायग्राम and this circuit connected by using this circuit diagram, keeping your mind. So this circuit diagram is connection should be tight. ये जो कनेक्शन है ये टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए. इस तरीके का सिंपल कनेक्शन है एज शोन इन सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम देख के अपन ने सर्किट बनाया है, और सर्किट बनाने के बाद उस सर्किट जो है उसका हर पॉइंट चेक करना है आपको कि कनेक्शन शुड बी टाइट है क्या नहीं. इन दिस वे
connection should be tight. This is very important, otherwise our result is not come. Keeping your mind. So student, this is the Joule constant assembly. In this assembly we have to use thermometer, then stirrer, then water and calorimeter. So now first we see the observation, that is physical observation, keeping your mind. So our physical observation is, first is list count of ammeter. Suppose student, this is the list count. Already you have to know. First we will see range of ammeter. So this is the 0 and here is 5. So range of this ammeter is 0 to 5 ampere. And list count of this ammeter is 0.1. 0.1 ampere. Then list count of voltmeter. Suppose this is the list voltmeter and the range of this voltmeter is 0 to 1. Here we have to give 0 to 1, but generally voltmeter is used 0 to 5 voltmeter. Volt 0 to 5 वोल्ट का अपने को वोल्टमीटर यूज करना है. यहाँ पे रेंज दी है 0 to 1, बट यू हैव टू कंसिडर 0 to 5 वोल्ट. एंड so this is the range 0 to 5 volt, and least count of this voltmeter is 0.1 volt, keeping your mind. After that, least count of thermometer. Student, this is the thermometer and this thermometer is used here. So this is the thermometer. So range of this thermometer is 0 -10 to 100 डिग्री सेल्सियस. ये जो रेंज है इसका, यहाँ पे आपको 0 दिखाएगा. ये लिसन हियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 10 दिया है, यहाँ पे 0 है तो -10. ये जो है -10 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये -10 है. -10 ये 0 है तो 0 के नीचे -10 है. सो 0 to 110, 0 to 110 मतलब 110 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है तो 110 डिग्री सेल्सियस हो गया. इसका जो रेंज है 0 to 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब कम से कम अपन इससे -10, यहाँ पे नीचे देखो 0 के नीचे साइड में 10 है तो ये -10 है. ऐसा ही इसको यदि अपन कैच करेंगे तो ये 0 है, 0 की राइट साइड प्लस साइड आती है, प्लस साइन आता है, और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस साइन आता है. सो ये 0 हो गया. सो दिस इज द -10. सो कम से कम ये थर्मामीटर से अपन -10 डिग्री सेल्सियस रीडिंग ले सकते हैं. सो लिस्ट काउंट ऑफ दिस थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस, कीपिंग योर माइंड. एंड रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर 0 to 110. देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है. सो 0 to 110 इसका क्या हो गया, रेंज हो गया. और इससे कम से कम माइनस तक अपन रीडिंग ले सकते हैं, -10, कीपिंग योर माइंड. So this is the thermometer we have to use to measure the temperature of the water in the calorimeter. Second, mass of the copper calorimeter. ये कॉपर कैलोरीमीटर है, इसका अपन को मास लेना है. तो मैंने इसका वेट किया है, मास मतलब वेट, तो वेट किया है तो वेट आया इसका 30 ग्राम. और 30 ग्राम का केजी हो जाएगा बेटा 0.003 केजी. क्यों? तो ग्राम का यदि केजी करना है सो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, इसलिए 0.03 केजी आएगा. देन इसमें थोड़ा आधे तक वाटर लेना है कैलोरीमीटर में, तो वाटर के साथ कैलोरीमीटर का वेट करना है. सो 45 ग्राम उसका वेट होता है. सो उसके बाद उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.045 केजी आएगा बेटा. देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर वी हैव टू गिवन 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. लिसन, स्पेसिफिक इसका स्पेसिफिक हीट दिया रहता है वो 0.1 कैलोरीमीटर. कॉपर कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस रहेगा. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 किलो कैलोरी
1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर इन योर माइंड, अपने माइंड में ये रिमेंबर रखो, क्योंकि एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, और कॉपर का स्पेसिफिक हीट होता है 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, और वो दोनों आपको प्रैक्टिकल में, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, कीपिंग योर माइंड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिस कैलोरीमीटर इज 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो अगेन आई रिवाइज दिस, इकडे मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर MC, M का मतलब मास, C का मतलब कैलोरीमीटर। देन मास ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर दैट इज MW, M मतलब मास एंड W मतलब वाटर। मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, सो दैट इज 45 ग्राम। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर, दैट इज 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW, that is S is the specific heat and W is the water. So 1 kilocalorie per kg degree Celsius. Then initial temperature of water we have to measure. Listen here, student, this is the thermometer and we have to measure the water in the calorimeter. So initial temperature of the water is 24 degree. Listen here, so this is the 24, ये देखो यहाँ पे 20 है और उसके ऊपर 4 लाइन है, और ये रेड कलर इंडिकेट्स कर रहा है बेटा, तो ध्यान में रखो। तो ये हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। देन इनिशियल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर तक अपने को करंट फ्लो करना है, और वोल्टेज 2 वोल्टेज तक अपने को प्रोसीड करना है, प्रोवाइड करना है इन द सर्किट। सो समझो अपन ने 1.5 अब स्टार्ट कर दिया इधर, और स्टार्ट करने के बाद 1 मिनट ना, student listen here, this is the power supply and our reading is 0.0, so we have to increase this 1.9 after 2 वोल्ट अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड किया है, और इसमें आपका 1.5 करंट शो हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 आपको दिखेगा, लिसन। सो इसमें आपका 1.5 करंट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अपन ने डेवलप प्रोसीड किया, तो इसमें आपको 1.5 एम्पियर करंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रिओस्टेट से अपन चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा आएगा। तो ये असेंबली में इसका धीरे धीरे हीट बढ़ेगा बेटा। अभी अपन कंसीडर करते हैं कि सर्किट अपना स्टार्ट हो गया है। सर्किट स्टार्ट हो जाएगा तो इनिशियल टेम्परेचर भी अपन को पता चल गया है 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल देखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल देखो बेटा, ये ऑब्जर्वेशन टेबल। सो इसमें ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, सीरियल नंबर है 1 to 4 तक आपको मैक्सिमम 4 रीडिंग या 6 रीडिंग लेना है। उसमें टाइम टी इन सेकंड, 300 सेकंड, 300 सेकंड, 600, 900, 1200, 1500, 1800। सो दिस द 300 सेकंड एज लाइक ए 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक अपने को टेम्परेचर बढ़ाने का है। टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर कितना होता है वो आपको इसमें थर्मामीटर में देखने का है। जब 5 मिनट के लिए अपन स्टॉप वॉच यदि यूज करते हैं तो 5 मिनट उसमें देखने का है। 5 मिनट्स में टेम्परेचर कितना बढ़ता है उसमें देखना है। तो 5 मिनट में सपोज यू हैव टू कंसीडर 29 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर वी गेट 24 डिग्री सेल्सियस। सो आफ्टर दैट व्हेन वी हैव टू यूज 5 मिनट्स, सो टेम्परेचर इंक्रीज 29 डिग्री सपोज। सो 29 डिग्री यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सो अपन उसका वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फार्मूला है VIT। लिसन हियर स्टूडेंट,
ये थीटा 2 का वैल्यू आया अपना, थीटा 1 का वैल्यू हो गया अपना 24, ये थीटा 1, थीटा 2 आया अपना 29। 5 मिनट के लिए अपन यदि वेट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कम नहीं होगा बेटा। क्यों? तो वी हैव टू अप्लाई द वोल्टेज एज वेल एज करंट इन द सर्किट। सो वी गेट 29 डिग्री, वी हैव टू कंसिडर दिस 29। यदि टेम्परेचर बढ़ गया है 29, 30 जो भी बढ़ता है तो वी हैव टू कंसिडर ओनली 29 डिग्री बढ़ गया है सपोज। सो इसमें अपन वर्क डन W इक्वल टू VIT, V का मतलब वोल्टेज, सो दैट इज 2, देन करंट 1.5 एंड T इक्वल टू 300। सो और आंसर इज 15 दूनी 30, 30 3 90। वर्क डन आया 900 जूल, कीपिंग योर माइंड, बिकॉज W इक्वल टू VI2, V का मतलब 2 वोल्ट, देन I का मतलब 1.5, सो 1.5 इंटू 2 3 हो गया, 3 इंटू T का वैल्यू है 300, T का मतलब सेकंड, सो 900 आ गया। 900 आने के बाद अपन उसका MC मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू SC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। MC का मतलब कितना हो गया बेटा 0.003, जो पहला एक रीडिंग में आपको बताता हूँ 0.003 इंटू SC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर कितना हो गया 0.1 प्लस MW मास ऑफ वाटर के साथ कितना हो गया 0.045 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना हो गया 1 इंटू θ2 माइनस θ1 मतलब 29 माइनस 24, so this is the initial temperature 24 degree Celsius and this 29 is the final temperature, that is θ2, तो 29 माइनस 24 हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द KCAL। तो अपना आंसर कितना आएगा पहला रीडिंग 0.3 0.03 into 0.1, so we get 0.003, then 0.45 into 1, so that is 0.45, so 0.45, so we get 3540, so 0.0453 multiply by 5 multiply करो 15 और आंसर 0.2265, इसमें आंसर आएगा अपना पहला रीडिंग का 0.226 किलो कैलोरी, दिस इज आवर हीट जनरेटेड, ध्यान में रखो 0.226। और ऐसे ही अपने को बेटा 4 रीडिंग लेना है और वो मैंने आपको PPT में लेके दिया है। समझो 29 हो गया और अपन 6 मिनट के लिए उसका रीडिंग लेते हैं, 6 मिनट अपना आई एम सॉरी यार, दिस इज 5 मिनट्स, तो इसमें अपने को 10 मिनट के लिए रीडिंग लेना पड़ेगा, दैट इज 600 सेकंड, 600 सेकंड। उसके बाद 900 सेकंड के लिए, 900 का मतलब कितना हो गया 15 मिनट हो जाएगा ये, 5 10 15 20 देन 25 और 30 बराबर है। तो ऐसा 5-5 मिनट का डिफरेंस अपने को रखना है और ऐसे मैक्सिमम 4 रीडिंग तक लेना है। आपका वर्क डन भी निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे वर्क डन चारों का लेना है। उसके बाद ये फार्मूला आपको पता है, फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला अगेन लिसन हियर, H इक्वल टू MC इंटू SC प्लस MW इंटू SW इंटू इन ब्रैकेट θ2 माइनस θ1। अभी ये रीडिंग के लिए अपने को
29 माइनस 24 किया, दूसरे रीडिंग के लिए 30 माइनस 24 करना पड़ेगा, तीसरे रीडिंग के लिए 32, क्योंकि ये यू हैव टू कंसीडर दिस इज द टेम्परेचर इंक्रीज थ्रू आउट द सर्किट डायग्राम और थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जैसा कंप्लीट हो जाएगा ऐसा अपना टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 1-1 डिग्री ही बढ़ेगा, और 1-1 डिग्री भी नहीं बढ़ सकता है, वो 0.5 के लगभग से बढ़ता है, ध्यान में रखो। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है। उसके बाद ये 4 रीडिंग जब आएगा तो आपको हर रीडिंग का जे निकालना है, जूल कांस्टेंट, और ये फार्मूला है जे अपॉन डब्ल्यू अपॉन एच, ये डब्ल्यू हो गया वर्क डन और ये एच, तो डब्ल्यू अपॉन एच निकालोगे तो सपोज यू हैव टू कंसीडर सेकंड रीडिंग 0.3 सपोज, सो KCAL 0.3, ये सेकंड रीडिंग वी हैव टू कंसीडर। सो W इक्वल टू सपोज दिस इज 900, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 10 से 30 5, 6 गया, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 0.7। लिसन यार स्टूडेंट, ये रीडिंग आएगा तुम्हारा 0.27 रीडिंग आएगा, थोड़ा बढ़ेगा। तो ये रीडिंग आपका W हो गया, ये H हो गया, तो W 900 डिवाइडेड बाय 0.226 को डिवाइडेड करो तो आपका रीडिंग आ जाएगा 0.8 तक रीडिंग आएगा, 0.8, कीपिंग योर माइंड, 0.8 जूल। जे इक्विवेलेंट रीडिंग तुम्हारा आएगा जे पर किलो कैलोरी, जे पर KCAL। देखो बेटा ये रीडिंग 0.8 कैसा आया, ये 900 दिस इज द W एंड 0.226 ये रीडिंग है, तो इसका जे आएगा 900 डिवाइडेड बाय 226 यदि करते हैं तो आपका 2 4 8 होता है, तो 0.8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे और 0 बढ़ेंगे तो ये कम वैल्यू हो जाएगा 0, तो मैक्सिमम रीडिंग आपका 8, मैक्सिमम रीडिंग 0.8 इंटू यदि आप करोगे तो 0.8 या 8 रीडिंग आएगा। सो वी हैव टू कंसीडर दिस इज 8, कीपिंग योर माइंड, 8 जूल पर किलो कैलोरी एंड दिस इज योर आंसर रहेगा। तो ऐसा इसका हर रीडिंग का आपको जूल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। जैसा ये 8 आया, दूसरा 8.2 आएगा, तीसरा 8.4 आएगा, इस तरीके से जो भी बढ़ेगा पॉइंट में बढ़ेगा। सो ये 4 रीडिंग का फिर एडिशन करके डिवाइड बाय 4 करो तो आपका मीन रीडिंग मिलेगा जूल कांस्टेंट। सो जूल कांस्टेंट तुम्हारा 8 जूल और 8 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। सो जे अपॉन किलो कैलोरी। तो बेटा मैंने ये जो रीडिंग है आपके PPT में दिया है वो आपको देखने का है, कुछ नहीं समझेगा आंसर कैसा आया तो ये फार्मूले है, क्योंकि प्रैक्टिकल में सब फार्मूले होते हैं बेटा, ध्यान में रखो। और एक बार और उसके बाद ये यहाँ तक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट रहेगा, इसके साथ साथ आपको ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ ऑफ W वर्सेस H का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, W वर्सेस H। सो ग्राफ प्लॉटेड इन बिटवीन X एक्सिस एंड Y एक्सिस। तो इस तरीके का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज दिस इज X एक्सिस, ग्राफ पेपर में ऐसा ग्राफ आपको प्लॉट करना है। दिस इज द Y एक्सिस, दिस इज 0। सो Y एक्सिस एंड X एक्सिस shows the H amount of heat and Y एक्सिस shows the W is work done। ये तरीके का ग्राफ रहेगा और ग्राफ में ऐसा एकदम से सीधा स्ट्रेट लाइन निकलेगा बेटा, एंड दिस इज द ये ग्राफ रहेगा।
इस तरीके का ग्राफ आएगा. अगेन लिसन हियर स्टूडेंट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ऑलरेडी यू हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ ग्राफ इन 10th स्टैंडर्ड, कीपिंग योर माइंड. सो x axis shows h is the amount of heat and y axis shows the w is the work done. और दोनों में से ये 4 पॉइंट आपको लेने का है. w ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा, और ये पॉइंट आपको लेने का है w के और h के. और ऐसे पॉइंट आएंगे, समझो. एक आधा पॉइंट ऐसा साइड में भी जाता है और चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है या इधर आता है. तो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट वो आपको ज्वाइन करने का है. एंड दिस इज योर ग्राफ. सो स्टूडेंट, इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है और इजी एक्सपेरिमेंट है. तो आपको ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. फिर भी मैं एक बार और आपको सर्किट डायग्राम बताता हूँ. ये पावर सप्लाई है, एमीटर, रिओस्टेट, टैप की, एंड दिस इज द असेंबली ऑफ जूल कांस्टेंट एंड दिस इज द वोल्ट मीटर. जैसा आपको सर्किट डायग्राम है, सो सर्किट डायग्राम देख के आपको सर्किट बनाने का है. एंड सर्किट मस्ट बी टाइट होना चाहिए. तो ये सर्किट डायग्राम में जो एपरेटर्स दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, रिसोर्स दिए हैं, वही हमने यहाँ पे यूज किए हैं. और उसमें हर रिसोर्स का आपको स्पेसिफिकेशन दिया है. उसका कितना जैसा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर 0 to 5 वोल्ट उसका रेंज है. और लिस्ट काउंट 0.1 वोल्ट यहाँ पे आपको दिया है. ये क्वांटिटी यूज किया है, 1 क्वांटिटी. सेकंड एमीटर, एमीटर का भी एक क्वांटिटी यूज किया है, 1 पीस. प्लग की भी 1 पीस यूज किया है, मतलब 1 नंबर. एंड रिओस्टेट आल्सो वी हैव टू यूज 1 नंबर, कीपिंग योर माइंड. सो स्टूडेंट, नाउ आई स्टॉप हियर. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू आस्क मी. थैंक यू.